पे पूरा फुल ट्रैवल चल रहा है, ओनली नॉर्थ ईस्ट इज वन प्लेस यहाँ पे फुल कोई बैन नहीं है इतना। हाँ, बिकॉज वहाँ पे केसेस ही नहीं है। हाँ, देयर नो नॉर्थ ईस्ट केसेस, एक केस था वो भी हट गया, दैट वाज वो वन भी केस, हट गया वन केस। केस वो भी हट गया। ट्रू। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ सर। हम्म। ओके, बट वही है, इनडायरेक्टली वो भी तो इम्पैक्टेड रहेंगे यार, मतलब नॉर्थ ईस्ट का इफ आई टॉक अबाउट, चलो ठीक है, दे कैन ट्रैवल एंड ऑल, बट फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक दे आर मोस्टली अर्निंग फ्रॉम द टूरिज्म ऑल टुगेदर, या मतलब दैट इज सेल्स देयर, ऑफ द थिंग्स। बट सर बाकी जैसे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपनी जो हैं, या स्टेट जो अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, या वहाँ वहाँ पे जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अपने टाइम पे वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज वन थिंग। बाकी जगह पे आई थिंक ओनली इवन नॉट ऑल ऑफिशियल एम्प्लॉयज भी वर्क नहीं कर रहे, ओनली डीन पर्सनल जिसको ऑन फील्ड रहना है, ओनली दोज गाइस आर वर्किंग। बट दैट इज आल्सो ओके, लाइक, बट ठीक है, मतलब एंड वैसे ऐसे आई थिंक लाइक 15th जून तक है शायद, दिल्ली तक, दिल्ली में 15th ऑफ जून तक तो मेरे को लग रहा है कि जाएगा ही लॉकडाउन। मई तो कंप्लीट जाएगा, जितना जितना ये करके लेके जा रहे हैं, शायद 15th जून तक कुछ रिलैक्सेशन मिले। हम्म। एंड मेन चीज ये भी था कि जो हमें लग रहा था गर्मी होएगी, वायरस मर जाएगा, बट ये वायरस गर्मी प्रूफ भी है। So normally there are things that it doesn't die at a high temperature too. So multiple हम्म। research going on and it is mutating. So I was seeing a report in UK, like it has mutated 10 times. Virus and bacteria हम्म। में परत है 10 बार mutate हो चुका है, and like it is impacting the children's now at a huge rate. उसकी नई mutated form है. So the best thing is be home. Okay. So let's start our class. Uh, So जो कल हमने, so yesterday we completed with the installation and the upgradation removal of the packages from Python, Anaconda and Spider. You can say using Pipconda. We completed all. So today, anyone of you have any question regarding any of this app? Please let me know so that if there is no doubt, then we can start with the Python coding computer. Gurdeep. Fine, sir. नो सर। Okay, no doubt. That's great. So today we start with the basics and we'll work in the spider part. So just to understand. So okay, we are going to start the class today, and like we will be working in Jupyter at present, and then sorry, we will be working in Spider only. Uh, okay, Spider only will be working, and then in some classes we may switch to Jupyter, and then we may come back to Spider. So initially it will be much of your Spider, and then like when you are familiar with Spider, then some classes will be in Jupyter altogether, so that we are familiar with both the things. I think like is anyone facing any issue with the working in Spider, and like any issue with Spider interface कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, you can let me know. I can help you out. So today we are going to start with the print functionality. So and after print we will go with different data structures. So do I have a simple list for you all? Okay. So today it will be more with your print command. So this is much of what I'm thinking for today.
just to show you the print. We will more with the print variable declaration, math operation, data structures. But but we will cover it as will not be much faster, will not be much slower too, at a speed with by which all of you are comfortable with these things, understanding these things. So if I talk about print, so as I told you, print is a function in Python. तो function का एक अलग definition है, which we will also cover. So if I say print, so in order to print something in Python, this is a command for the same. Print all in lowercase, and it starts with a parenthesis. Then you put a single quote, and you say hello world. Got it? And when you press F9, it will give you the result hello world. Okay. So this is the execution part. It's made works with a single quote. It do works with a double quote. Okay. But normally single quote किधर fail होता है? जो normally that we go to the double quote part. For example, if someone write hello world, what's up? So if you see in this case, ये हुआ क्या? Oh, okay. If I show you here, so मैंने क्या किया? Hello world, what's up? ठीक है. I put apostrophe s. So if you see in this case, my string was starting with a single quote and it was ending with a single quote. But अगर मेरा बीच में apostrophe s आ गया, वहाँ पे मेरा single quote fail हो जाएगा, because it do works in pair. So it starts from here and it ends here. So इस केस में क्या, इसका जो पेयर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, started here, it ended up here, and then again it is starting from here. So if I run this, it will give me a syntax error. This is invalid syntax. So to overcome this problem, we use double quotes. We use double quotes here, and if I run it now, okay, sorry, let's do double quote. If I run, so we are able to print it up. ठीक है. So but in Python, अगर मैं इसको triple quote से भी लिखूंगा, तो भी मैं it will work for me. So it is like since so there is another case altogether. अगर कोई इसको double quote में लिखेगा, then of course triple quote will be there to help you out. ठीक है. So this, if I run it up, then also it's working. Okay. Okay, now tell me one thing. Have I told you what is the use of triple quotes also? So ठीक है. So इसमें है क्या कि ये triple quote से print हो रहा है. But what is the difference? So when I go to the double quote part, यहाँ पे क्या है? If I press enter, ठीक है. So I press the enter, and when I print it up, it will say EOL. EOL stands for end of line. Error है ये, syntax error, end of error. So what I was trying to do is I was trying to print multiple lines using the print command, but वो possible नहीं है. So what I normally do, so if I do it in triple quotes and if I run it up, तो triple quotes में मेरा multi-line print भी काम करता है. ठीक है. So quotes is the multi-line print. And what is the second use of the triple quotes? Anyone of you? Abhimanyu, Aviral, Rishabh, Dikshita, triple quotes और दूसरा use case क्या है? Sir, if we'll be using inverted commas in the sentence, then it won't tamper our command. So it is more मल्टी लाइन अगर कमेंट्स बनाना हो तो हम ये ट्रिपल कोट वाला स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं गुरदीप. करेक्ट सर. सो नॉर्मली अगर आपको इसको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो भी आप ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे. ठीक है. सो ट्रिपल कोट से दो यूज हुए, एक तो मल्टी लाइन प्रिंट एंड एक मल्टी लाइन कमेंट. ठीक है. मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या है? जस्ट टू इन ऑर्डर टू टेल यू अगेन,
जैसे अभी मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है सिंगल लाइन, इसको आप कमेंट ऑन कमेंट कैसे कर सकते हो, सिलेक्टेड एंड प्रेस कंट्रोल 1, तो अनकमेंट हो गया। अगर मैं कंट्रोल 1 करूंगा तो वापस कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो कमेंट में क्या होगा, मैंने रन दिस पार्ट, तो ये प्रॉपर लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती आपकी कभी, ठीक है। दिस इज यूज फॉर राइटिंग सम डेफिनेशन ऑफ थिंग और एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए आप इस चीज को यूज करते हो कोड में, ठीक है। एंड व्हेन आई जस्ट, एंड इसका शॉर्टकट है Ctrl+1। सो द शॉर्टकट फॉर दिस इज, इफ यू गो हियर यू कैन सी the shortcut for comment and comment is Ctrl+1, ठीक है। when I go here again, I select it again and I press F9, ठीक है। sorry यहाँ पे वो error है because print को मैंने, okay, so if I just select all and if I press, this particular lines are not executed, I don't get any error। and अगर मैं इसको uncomment हटा दूंगा Ctrl+1 करके, and if I run it, I will get these errors की invalid syntax and all, ठीक है। so ये comment में है। so ट्रिपल कोट्स तो एक मल्टी लाइन प्रिंट था। the second use case is, for example, ये तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, you can use ट्रिपल कोट्स for मल्टी लाइन कमेंट, बट उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, जो आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे ना मल्टी लाइन कमेंट में, एंड अगर आपने बीच में मल्टी लाइन प्रिंट में भी कई ट्रिपल कोट्स यूज किया होगा, सो ऑल द थिंग्स वर्क इन अ पेयर। तो यहाँ से इसका पेयरिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जिधर आप प्रिंट में यूज करे थे वापस का पेयरिंग खत्म हुआ, एंड फिर इसका पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड उसका पेयरिंग यहाँ पे खत्म हुआ। सो दिस विल गिव यू इनवैलिड सिंटैक्स एरर। इफ आई जस्ट रन इट अप, इट विल गिव मी इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज हेलो वर्ल्ड प्रॉपर किसी कोड्स के अंदर नहीं आया, ठीक है। सो इन दैट केस यू नीड टू जस्ट लुक कि ये कैसे दैट देयर इज नो पेयरिंग लाइक सच, और उनको आप सिंपल एंड दोज लाइक यू डील विद द सिंगल कोट्स, ठीक है। आप जो सिंगल लाइन कमेंट से डील कर सकते हो सिचुएशंस को। एंड सो एंड दिस वन मोर थिंग, आप ट्रिपल कोट या तो सिंगल कोट डालिए, ठीक है, या ऐसे डाल दो। so the pairing is equal always, so you can put it either 3 single quotes or you can put 3 double quote, ठीक है, both of them are fine। so आप ऐसे भी कर सकते हो। and this is one of the solution also। so here comes the precedence power। so when I run this up, ठीक है, ये सबका सब मल्टी लाइन प्रिंट, मतलब दिस इज ऑल इज इन कमेंट, ठीक है। सो पहले हमारे साथ क्या इश्यू आ रहा था, जब मैं इसको सिंगल लाइन सिंगल कोट के साथ कर रहा था, तो यहाँ पे वो दिस थिंग वाज गेटिंग हाईलाइटेड अप बिकॉज वो ट्रिपल कोट्स का इसके साथ पेयरिंग होके द कमेंटिंग वाज गेटिंग एंडेड अप हियर, ठीक है। सो प्रिंट में आप 3 ट्रिपल कोट्स यूज कीजिए एंड व्हेन व्हाइल कमेंटिंग यू शुड यूज 3 डबल कोट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि it will have a higher precedence over these two। so when you run this complete thing, there is no error given this much of output जो कि आपका सब कुछ नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, एंड इस पे आपका सब कुछ फोल्ड भी हो रहा है। दिस मच ऑफ द फीचर ऑफ फोल्डेबल, जो आप यहाँ से कर सकते हो सोर्स से, शो कोड फोल्डिंग। सो दिस इज द कोड फोल्डिंग फीचर। तो आप नॉर्मली उस पार्ट को फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हो ट्रिपल कोड से। एनी डाउट एनीवन ऑफ यू डू हैव in this simple single quote, double quote and triple quote functionality of print या multi line comment में कुछ समझ में ना, multi line print समझ में ना आया हो, anything till now? Abhimanyu, do one thing, just let me make someone a spoke। so जिसका background, so अभिमन्यु आपका background silent है, ऋषभ आपका background silent है? हाँ सर, बैकग्राउंड साइलेंट है। ठीक है, आप अनम्यूट रखिए। गौरव सर, गौरव बड़ानी, आपका बैकग्राउंड, इज योर बैकग्राउंड साइलेंट गौरव? ठीक है, तो आप ये अनम्यूट रखिए। इफ देयर इज समथिंग देन यू कैन म्यूट इट, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अनम्यूट रखो अगर बैकग्राउंड साइलेंट है तो, एंड बी इंटरैक्टिव। मैं अगर पूछ रहा हूँ कुछ तो बता दो, मतलब
For example, what I can do is I can make 2 Spock for this session, and बाकी बंदे मेरे को, for example, the Spock for this session will be Abhimanyu and Gaurav, Abhimanyu and Rishabh are the 2 Spocks with this for this session. मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, then like is this clear to you all? तो सब बताओ. But normally this is screen visible and also you two have to be active. ठीक है? So you two are the Spock for this session. तो अगर मैं कुछ पूछूं कि सब सही है नहीं है, you need to reply. ठीक है? So सब समझ में आया? अगर you both have to reply for sure कि समझ में आया नहीं आया. बाकी लोग भी अपना अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं. So that it is more interactive and I can get a feel कि ठीक है समझ में आ रहा नहीं आ रहा. So ये सिंगल कोड डबल ट्रिपल कोड का मतलब समझ में आया? हाँ सर. ठीक है. मल्टी लाइन कमेंट समझ में आ गया अभिमन्यु सर? Yes. ठीक है. So this was the simple print command. अब print के अंदर आपकी multiple show, as I have told you, print is a function in Python 3 and it was a statement in Python 2. तो Python 2 में अगर आप print को ऐसे लिख देते थे, if you write simply like this, hi, Python 2 में तो ये तब भी चल जाएगा, but Python 3 में error देगा. ठीक है? Because Python 3 में it is a function, तो function के arguments होते हैं. Okay, anyone of you, what do you mean by a function? Actually, I know this thing will cover up, but what do you mean by a function? Dikshita. The function is more like which defines something else. I mean, Sorry. instead of running 2 or 3 lines of code, we'll just build a function with one command. Those 3 lines will be run by that command. Okay, so quite close. Rishabh, what is the use of function? Sir, I have no idea. Okay. Gaurav. Yeah, so function is a set of code which you can reuse by passing a parameter and get the value out of it. Correct. So you can say function is a piece of code which you can reuse again and again, and आपको वो लाइन बार बार नहीं लिखनी पड़ती. You do just call the function by its name. तो function का नाम होता है, ठीक है, और आप उसके नाम से उसको पुकारोगे and वो आपके लिए वो कार्य कर देगा. ठीक है, वो चीज हम कवर करेंगे. That is the use of function. So function is used. You can say a function is used to like use a piece of code again and again without writing it again and again. ठीक है, तो ये proper code को it is used for removing the redundancy in a code कि आप एक ही code को बार बार लिखते हैं और उससे आउटपुट लेके आ रहे हैं, तो उसको हम function बना देते हैं. ठीक है. So print is a function and function के कुछ parameters होते हैं, arguments होते हैं. Don't worry, अगर अभी नहीं समझ में आया, नेक्स्ट गोइंग क्लासेस में हमें फंक्शन कवर करना है, हम अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, इट विल बी क्लियर टू यू. बट ये याद रखो, प्रिंट इज अ फंक्शन इन पाइथन 3. तो व्हेन आई एम सेइंग प्रिंट एंड आई एम गिविंग दीस वैल्यूज, दिस इज हाई, ये मैंने सिंपल पहले वैल्यू दी थी, एंड इफ आई एम गिविंग द सेकंड वैल्यू हाउ, एंड देन आई कैन गिव द थर्ड वैल्यू r, and then I'm giving the fourth value u. ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो सिंपली ये चीज ऐसे प्रिंट हो जाएगी, हाय हाउ आर यू. लाइक इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसके बीच में एक कॉमा नहीं है, बट यहाँ पे कोमा है. कोमा शोज अ कंकैटिनेशन ऑफ ऑल दिस 4 टाइप ऑफ प्रिंट कमांड्स. ठीक है, तो ये सब यू कैन से दिस आर मच ऑफ सम वैल्यूज. यहाँ पे ये एक सिंगल वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप, यहाँ पे ये 4 वैल्यूज आपने प्रोवाइड की है. ठीक है, प्रिंट में. सो जब आप मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करते हो प्रिंट में, देन व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ पैरामीटर नोन एज सेपरेटर. एक पैरामीटर है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज योर दिस a single space. So when I run this up, तो तब भी you're getting the same thing because ये एक इसकी by default value हम set की गई है. ठीक है, इसके by default value है single space, and if you change it, जैसे मैंने इसका separator का by default value change कर, then if I run it up, then you see कि normally वो normal space नहीं रहा पहले की तरह. If you see here, this is high, this is your separator now.
सेपरेटर का आपको मतलब समझ में आया होगा, मल्टीपल वैल्यूज को आप कैसे सेपरेट कर रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कमांड में। Did you get it? कि आप प्रिंट कमांड में मल्टीपल वैल्यूज को कैसे सेपरेट करोगे, दिस इज द यूज ऑफ इट, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट इट्स यूजिंग, बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है दैट इज अ स्पेस, ठीक है। सो देयर इज वन मोर थिंग जो मैं इसमें दिखाना चाहूंगा, दैट इज जैसे अगर आप नॉर्मल ये वैल्यू दोगे इट विल बी दिस, इफ यू एंड यू कैन गिव एनी वैल्यू हियर, लाइक स्टार स्टार, और इफ यू प्रेस F9 तो वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। द सेकंड थिंग इज, अगर यहाँ पे, सो डू यू नो व्हाट दिस मींस स्लैश एन, स्लैश टी किसके लिए होता है, इस स्पेसिफिक C++ में हमने इसको यूज किया है, हमने इसको आर्ग्यू में यूज करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एन या स्लैश टी, लाइक द बैक स्लैश एन, so Slash this n is stands for for the a, next line. correct, this stands for a new line or a next line, और ये स्लैश is used for a tab, ठीक है। तो अब मैं आपको यूज दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल print hi how are you, these are the multiple 4 values which you are providing the print command, and आप उनको सेपरेट कर रहे हो एक स्लैश टी मतलब टैब से। when I run this up, so ये normally एक टैब के स्पेस में these are getting separate, but normally this is, okay, so this much of a tab space in between the first one, ये normally सब में इतना space दे रहा है, ठीक है। normally it, okay, ठीक है। so this is how, so by default जो इसमें tab का space ले रहा है वो इतना ही ले रहा है, it is saying this much of a tab space, ठीक है, between these। the second, so this is how you are separating these values। आप slash n भी यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा, जो हर वैल्यू है will get printed into a new line, hi how are you, so this is a separator। slash n से क्या होता है, एक नई लाइन आती है, जो भी वैल्यू न्यू लाइन में जाके प्रिंट होती है। स्लैश टी से क्या होता है, there is टैब स्पेस बिटवीन दीज वैल्यूज, ठीक है। सो एक टैब का स्पेस आता है। so I think you are more clear about the this separator thing, ठीक है। now the next thing is which we want to discuss is जिसका एक अलग पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है, that is, इसके विषय में थोड़ी सी मॉडिफाई करता हूँ, I do it ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल वैल्यू दोगे, एंड ओके देयर इज वन मोर थिंग, सो ठीक है, हम उसको कवर करते हैं यहाँ पे। तो जैसे एक सिंपल एक वेरिएबल है a इक्वल टू 5, मैंने कहा a इक्वल टू 5, सो ये कैसे काम करता है, हियर a इज अ वेरिएबल, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल, एनीवन? Variable who can hold the data. ओके सॉरी अभिमन्यु, अभी बताइए। A variable where we can hold the data. Correct, you can hold the data, or some another Variable- definition, formal definition. variable- But the value is not Variable constant. is an It can object change which as we can per your dynamically requirement. Sorry Rishabh, can you repeat it again? I said, sir, when you say variable, we mean that the value is not constant. It can be changed, say a is equal to 5 for this particular operation. A can be 7 for the next particular operation, as per our requirement. Okay, correct. गौरव सर आप बताइए, what do you mean by variable? Yeah, variable basically is an object where we can store some specific data type related values, and it can be changed as per the requirement, or like we can change as per the dynamic value. Okay, correct. Subhanshu, do you have some idea about variable? Variable is basically a number which can vary, is a finite or infinite number. Can be varied according to requirement. It can vary according to requirement, correct. But it is not a number. वहाँ पे I would like to modify you. So of course its value can vary. ठीक है. So I think
Dishita, are you aware of the variable? So I want to get a definition from all of you, like what do you think what the variable is? So it is more like which stores the data value, and data can be of any type, like Correct, string, Dishita. integer, boolean, anything. Correct. So I can say a variable. So अगर इसकी हम formal definition में जाते हैं, so variable is a storage location address which is associated with the name where you store any value. So normally जो variable होता है, it is a storage location and उस particular storage location का एक नाम होता है जो variable का नाम है and we store any value in it. तो and जो आप उसमें value store करोगे, that can be integer, that can be float, that can be character string, वो कुछ भी हो सकता है. So इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, a is equal to 5 मैं एक variable बना रहा हूँ that I can see in my variable explorer also. यहाँ पे क्या है कि variable explorer में a एक नाम है, उसका type integer है, उसका size 1 है and this is the value. ठीक है. Now if I do it 5.5, so it will be float. So if you go to the basics of programming, तो उसमें दो different character types of data type होते हैं. Okay, the next, okay, ठीक है. So वो मैं इसके बाद कवर करूँगा. So if I say a is equal to 5.5 and मैं यहाँ पे a को भी डाल सकता हूँ, hi WhatsApp and comma a, ठीक है. So इसमें अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो जो मेरा a यहाँ पे मैंने वैल्यू डिक्लेयर की थी, a is equal to 5.5, उस a की वैल्यू को मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ बिकॉज मैंने a में ये वैल्यू सेव कर दी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेरा नॉर्मल सेव होता है चीजें, वो लेफ्ट टू राइट सेव होती है, राइट टू लेफ्ट सेव होती है? मतलब ये ऐसे होता है कि a, सो इसमें एलोकेशन कैसे होता है, a मेरा 5.5 है या 5.5 मैं a में डाल रहा हूँ, हाउ इज द ट्रांजिशन? गौरव क्या? So okay, अभिमन्यु आप बता दीजिए. So anyone can tell. राइट की वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो रही है. Okay, so you are saying the transition is like this: A is having the value 5.5. यस, मतलब राइट टू लेफ्ट हो रहा है, राइट से वैल्यू पिक होके लेफ्ट में स्टोर हो रहा है. So वैल्यू हमेशा जैसे राइट है, राइट से वैल्यू होकर लेफ्ट में स्टोर हो रहा है. करेक्ट अभिमन्यु? So this is how a value is stored in a variable. And वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करें, आप उसका नाम यहाँ पे यूज कीजिए. So hi WhatsApp 5.5. So these are much of a random commands. अब now the another command which we will deal with is, जैसे यहाँ पे separator था, so मैं इन दोनों commands को जब रन करता हूँ print functionalities को, you will see कि जो पहले वाले में it is coming hi how are you, because यहाँ पे मैंने separator में I have put 3 dash, and in the next line it is coming hi WhatsApp 5.5, because यहाँ पे मेरा जो separator it is a simple space. Now main thing is there is one more parameter and you can change this behavior too, that is the AND parameter, END. and आप उसमें क्या करोगे, you can input any value here and you can input a value, for example by default जो इसकी value है that is /n, ठीक है. So this is the by default value, and if I run it up तो वही same to same print हुआ है. So it deals कि एक print command होने के बाद next line कैसे आएगी for this print, that is dealt by this and I can change it. So हम इसको करते हैं by space start and space. So when I run this command now, क्या हुआ, both the lines, both the print statements are coming in a single line. So this is mainly the use of the AND command. अब AND कैसे करते हो, basically first line and second को आप कैसे join करते हो. पहले जो ये ऑपरेशन था, it was, so I can say the first line and second line कैसे separated है. पहले by default the value is this. So it shows कि how these two lines are separated, that is by /n, that the next print statement will come in another line, but you can modify it to any value. ठीक है. So this is much of a thing which is up to here. Now इसके बाद एक ऑपरेशन था फाइल का, ठीक है. But before that I'm just pasting this code in your chat and I would request you all to able just try it in your system if you are not trying it together with me, because you were analyzing them, you were just studying all this.
just copy paste separator and end को change करके देखो, just understand how they work, ठीक है? Just try them out in the spider and run करके देखो. If you have any question then do please let me know. ठीक है? So it will take only 2 to 3 minutes. एक बार इसको एक बार चला के देखो and change the value of separator and command and then see what result do you get. So are you all able to run this command या किसी को issue आ रहा है, error आ रहा है? Rishabh, Amanyu, Dikshita, Gaurav, Subhanshu, any error are you getting? Yeah, No. कोई difficulty? So are you able to see the result? And yeah, if you want to check this thing, the end wala thing, so we have to select both the lines and then run it. Then only we'll get it in one line. Yeah. Till the variable. So End जो आप जो आप एग्जीक्यूशन करोगे ना, so normally जैसे at present हम क्या कर रहे हैं, हम single line run कर रहे हैं using F9. This is mainly used when you are running the complete code in a single code. तो अब जब सिंगल को पूरा कोड रन करोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल वर्क फाइन. फॉर एग्जांपल इफ आई रन इट, इसमें क्या होगा कि तो वो पूरा का पूरा साथ में रन हो गया. अभी हम मल्टीपल लाइन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग एंड रनिंग, अदरवाइज यू नीड टू रन बाय F5. Okay. Yeah, where it will work properly. Thank you. So I think all of you are able to do it. Okay, now we are going to the next parameter of it, and that is also important. So what I'm doing now is, so इसमें एक parameter होता है file का, ठीक है? So I will just mention it here only. And so file में क्या होता है, whatever is being printed on the console, जो भी प्रिंट में आपने वैल्यू दी है वो सारी की सारी वैल्यू आपकी उस फाइल में सेव होती जाएगी, ठीक है? So this normally you can use whenever you are connecting to some Twitter API and all, and आप कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, तो आपको साथ साथ उसको सेव भी करना है किसी फाइल में. फॉर एग्जांपल आप कुछ ट्वीट्स फैच कर रहे हो, प्रिंट भी हो रही है आपके कंसोल पे, बट साथ साथ उसे आप सेव कर सकते हो. सो हाउ कैन यू डू दैट इज, सो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी. So you need to open the text file. So this is how we create a file. Yeah, we open a file. So we name a object file underscore save and is equivalent to open. Open is a reserve keyword, ठीक है? And उसको हम use करते हैं open, and we will write the file name. The file name is, I can say, data underscore save dot txt, ठीक है? So this is the file name जो हमें open करना है, ठीक है? Comma, and so this will be a text file. So इससे होगा क्या, जब आप इस कमांड को रन करेंगे ना, it will see whether this file exists here. अगर वो एग्जिस्ट करते तो उसको ही ओपन करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल यहाँ पे बना देगा, ठीक है? So data underscore save dot txt. And so do you know what are the various modes by which we can access a text file? Anyone of you? Read, write, append. Correct. So what is the difference? So this question goes to Dikshita. Dikshita, what is the difference between write and append? The append is for adding something into the list or on whatever thing we are working. And second, what did you ask about? Right. Anji. Right, I don't know. Sorry.
Okay, no issue. So we'll cover that part. Anyone, Shubhanshu, yeah, Rishabh, what is the difference between write and append? Rishabh, okay. Shubhanshu, do you know? Do you have an idea? I also know the only for append, Okay, no issue. not idea तो of right. आप append का बताइए, अभिमन्यु सर राइट का बताएंगे. जब राइट करते हैं तो फाइल में जो भी लिखा हुआ होगा वो क्लियर कर देगा और उसको फ्रेश राइट करेगा जो हम राइट कर रहे हैं. Correct. एंड And अपेंड में जो लिखा हुआ है वो डेटा रहेगा, उसके बाद उसमें जो नया डेटा है उसको उसमें ऐड कर देगा. so these are the two operation of write and append. ठीक है. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, file underscore save file. So this is the open is a reserved keyword to open a file. Data underscore save dot txt. And here I will say I am performing first of all the write operation. ठीक है, हम write करेंगे पहले. ठीक है. So मैंने क्या किया इस लाइन में, मैंने कहा open this file data underscore save dot txt in write mode. ठीक है. सो ये पर्टिकुलर इस फाइल को ओपन करेगा राइट मोड में. अब जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ बेसिकली मेरे को इस फाइल में मैं दिस इज फाइल ऑब्जेक्ट एंड बाय दिस आई कैन एक्सेस दिस फाइल. ठीक है. जो मेरे को राइट्स मिला है वो राइट का मिला है. अब यहाँ पे मैं आऊंगा एंड देयर इज अ फीचर नोन एज फाइल. ठीक है. अब फाइल में यू विल से फाइल इज इक्वल टू फाइल अंडरस्कोर सेव. ठीक है. एंड सो यू डू दिस ऑपरेशन एंड चलो ठीक है, इन दोनों को अलग रखते हैं. इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. So I just take this variable declaration now. So I just do it like this. So मैंने क्या किया, file underscore save. When I run this command, मैंने इसको run किया. If you see, मेरे यहाँ पे एक नई फाइल बन गई. So I'm just deleting it again so that you can see the change. ठीक है. Okay. ठीक है. So let me just complete it. So okay. Now I will delete it. ठीक है. So if you see here, यहाँ पे कोई फाइल अभी एग्जिस्ट करती नहीं है मेरे फोल्डर में. ठीक है. So I'm running this command. I'm saying file underscore save is equal to file open and ये and write operation. When I do this operation, तो ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती नहीं थी, वहाँ पे वो फाइल बन गई है. And when I will run this command, so I'm running this command F9. ठीक है. So what it is doing is कि ये मैं इसने जो भी मेरा प्रिंट हुआ था वो चीज इसमें सेव हो गई. आई एम जस्ट अगेन रनिंग इट. ठीक है. एंड व्हेन आई ओपन दिस फाइल नाउ, ओके, सो इट इज सेइंग नथिंग इज स्टोर्ड. लेट मी डू इट वंस अगेन. सो समटाइम इज ठीक है. एंड इफ आई ओपन दिस फाइल अगेन, ओके, सॉरी. तो नहीं, There's some error is coming in file underscore save dot close. What is that? So I will just that part is a different one. So the main thing is तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है. That's why वहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है. Just तो बाद में क्या करते हैं ये वाला. So it is file is equal to just do it in the appendix. ठीक है. Sometimes it do happen that and just hold a second. Okay, here you are getting the output, right? So file is equal to file underscore save. When I run these two commands again, so if I'm just running them multiple times, तो अगर मैं इसको इस फाइल को ओपन करता हूँ, you can see you are actually हो क्या रहा था, पहले भी इसमें सेव कर रहा था, तो हम इसमें कर रहे थे, but it was not showing. ठीक है. तो कई बार ये चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती नहीं अगर हम जैसे पाइथन स्पाइडर में खोलते हो. So just let me delete. So now there is one thing. मैंने यहाँ फाइल अंडरस्कोर सेव में इसको ओपन किया. ठीक है. So मैंने क्या किया,
I just opened this file in append mode. Himanshu, I think आपको आपका voice So there is one thing. जैसे normally I think what happened is Shubhanshu tried उन्होंने login करने के लिए 2 से try किया होगा. So if you are login so if you are present in a meeting using your computer, then अगर आपको phone से भी login करना है या किसी और device से भी login करना है, what you need to do is, and both the things are with you only. जैसे अगर मैंने laptop से login किया हुआ है, and मैं अगर phone से भी login करूँगा, तो उस केस में मेरे को एक device को mute भी बंद करना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट दिस नॉइस. वो मतलब दिस इको आता है एंड लाइक शार्प नॉइस कम्स इन. ठीक है, सो दैट इज जो अभी आ रहा था. सो इफ यू कैन लॉग इन फ्रॉम 2, बट मेक श्योर यू जस्ट म्यूट द वन. ठीक है, उसका माइक भी बंद करना पड़ेगा, तो फिर ये इशू नहीं आएगा. देन यू कैन लॉग इन फ्रॉम 2. एंड अगर वो दूर दूर है दोनों चीजें तो चल जाएगा. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द कोड. So if you see here, यहाँ पे मैंने फाइल अंडरस्कोर सेव किया एंड मैंने इसको ओपन किया. मैं इसको राइट मोड में ओपन करता हूँ. So if you see here, अगर इस फाइल को मैं आपको ओपन करके शो करता हूँ, there are multiple things which are present in it. At present, hi, how are you, जो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, so अभी हो क्या रहा है, मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ राइट मोड में, एंड मैं इसको फिर से मैंने वो कमांड रन किया एंड मैंने गो हियर. सो दिस थिंग हाय हाउ आर यू इज सेव्ड. बेसिकली जो पहले की चीजें थी वो सारी की सारी ओवरराइट हो गई, वो सारी डिलीट हो गई, एंड फ्रॉम स्क्रैच दिस फाइल इज बिल्ड अप इफ यू डू इट इन राइट मोड. ठीक है, बट व्हाट आई नाउ डू इज, अब ये मैंने ऐसे किया, अब मेरे को इस फाइल को डिलीट करना है. सो आई सिलेक्ट दिस फाइल फ्रॉम हियर एंड आई प्रेस शिफ्ट डिलीट. So it will give me an error. It will say unable to delete this. The process cannot access the file because it is used by another program. It is used by program training. So just let me go to this particular folder. So show in folder करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ से folder open हो जाएगा. एंड अगर मैं यहाँ से भी इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा ना, तो यहाँ पे भी ये नॉर्मली डिलीट नहीं होगी. दिस इज द एरर व्हिच इज कमिंग. द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज़ द फाइल इज ओपन इन पाइथन. इफ आई ट्राई अगेन तब भी नहीं होगा, ये वापस ट्राई अगेन करेगा. सो हाउ कैन यू रिजॉल्व दिस वन इज बिकॉज ये प्रॉपर फाइल अभी पाइथन में ओपन हो रखी है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एंड यू कैन नॉट जस्ट, सो एक्चुअली आपने डेटा स्टोर कर दिया, सब कुछ उस पर ऑपरेशन कर लिया, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट फाइल. ना डिलीट कर सकते हो, नॉर्मली ना रीनेम कर सकते हो. सो बिकॉज दैट फाइल इज यूज्ड इन सम अनदर प्लेटफॉर्म, इन दिस केस इट इज पाइथन. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू राइट दिस कमांड फाइल अंडरस्कोर सेव डॉट क्लोज. सो उससे क्या होगा, योर पाइथन विल रिलीज दिस फाइल. ठीक है, सो पाइथन इसको रिलीज कर देगा एंड इट विल व्हाट वी से इट विल बी अवेलेबल टू यू फॉर योर मॉडिफिकेशंस एंड ऑल. सो हो सकता है कि कई बार आप कुछ ऐसी फाइल जनरेट कर रहे हो फ्रॉम योर पाइथन प्रोग्राम एंड आप उसको क्लोज नहीं कर पाए. सो उस केस में यू डोंट नो कि उसका रेफरेंस किधर था. तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पाइथन का यहाँ से या तो कर्नल भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या पूरे पाइथन को बंद करना पड़ेगा. ठीक है, सो उस केस में दैट इज द केस. सो ऑलवेज क्लोजिंग द, जैसे अभी भी मैं अगर इसको करता हूँ, इफ यू जस्ट सी, अगर मैं इसको वापस ट्राई करूंगा, ट्राई अगेन, तो ये फिर से एरर मारेगा कि सॉरी इट कैन नॉट रन. व्हेन आई रन दिस कमांड, अब मैंने इस कमांड को रन कर दिया, इफ आई ट्राई इट नाउ, लेट मी ट्राई, तो ये फाइल डिलीट हो गई. सो दिस फाइल इज नो मोर प्रेजेंट. सो डिड यू गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल अंडरस्कोर सेव डॉट क्लोज? मतलब समझ में आया? अभिमन्यु दीक्षिता, डिड यू गेट इट कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डॉट क्लोज का यूज क्या होता है? ओके, नाउ डू वन थिंग, इसमें आप फाइल का ऑपरेशन ही खुद करके देखिए. जस्ट ओपन अ न्यू फाइल, ठीक है, एंड ट्राई यूजिंग बोथ द मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड. एंड उसके बाद रीड मोड में आपको एक बार अलग से कवर करवाऊंगा, while we will be dealing with the text files. So write and append एक बार ट्राई करके देखिए and try this all the files, these 3 commands, and close भी यूज करना. Yeah, it's working fine. Great.
So इसको आप try करो write and append पे. So I'm just what I'm doing is, great. तो मैं इसको वापस run कर रहा हूँ. When I open it, so normally starting में error मारता है. It normally don't show the data. ठीक है, so data यहाँ पे आ गया. And where, so how many times I run it? वो हमेशा एक ही line पाएगी because वो write mode में है. And if I open in append mode, तो क्या होगा? It will be appending the value. So I'm running it multiple times. So you can see in the console, and let me see what is the change it is. So the things are getting appended up. This is the main difference between write and append. And at last, I can just close this file, and it is done. So do anyone of you have any question regarding this? Yeah, if you are trying, you can try it up. So those who have not tried, and do let me know if you have any question. So Gurdeep, it goes same with other file format as well. Suppose like I'm performing the same operation for Excel or MS Word and any XYZ file. So Okay, so the I can try statement the would be same only. Yes, so I will try this on the CSV file, but I want to make sure that text में सबको understand हो रहा है. Excel. So is the text file working? Like those who are done with the text file, try it with CSV file. Just check it out. Is it working? With your CSV file में काम कर रहा है ये. So what is the full form of CSV? Aviral sir, sorry, Rishabh. Rishabh. Hello, comma separated values. Comma separated values. Okay, higher comma separated variables. So okay, what is the difference between CSV? Correct. Okay, so what is the difference between CSV and Excel file? What is the main difference between CSV and Excel file? सर जो एक्सेल फाइल को अगर हमको रीड कराना है, मतलब अगर डायरेक्टली कोई भी मतलब जैसे कि से स्पाइडर या से फॉर आर टू रीड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डेटा, तो हमको उसको सीएसवी फाइल में मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर रन इनटू दैट थिंग. उसको हम वैसे एक्सेल में भी रीड कर लेंगे, बट मैं आई एम सेइंग नॉट फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इन जनरल सीएसवी एंड एक्सेल फाइल क्यों होती है, उनमें मतलब डिफरेंस क्या होता है? That is the CSV main is a simple text file, Gurdeep, where we can store the data in comma separated formatted. Okay. Yes, so and Excel is the XML formatted data. Okay. And what is the another difference? There are main two core difference. Okay, there are main three core difference. One you told. Limitation different, because in Excel we have rows limitation, but in CSV we don't have any. CSV works as per the space. Okay, so how many rows are available in Excel? I guess now in the latest version 10 lakh. Okay, earlier also it was 10 lakh 48,516. And what is the number of rows, columns, sorry. Gaurav sir, what is the number of columns in Excel? 265. Okay. Gaurav, was this Gaurav only replying it? I think his mic was on mute. Gaurav sir, am I audible? Okay, Dikshit. Yeah, am I audible? Right. The data in the CSV is unstructured, whereas in the Excel it is structured. No. It is easy to read in Excel rather than CSV. Okay, I think I can say Excel backend is very complex as compared to CSV. CSV is comma separated. That is one important thing. Structured and unstructured both are used to handle structured data. The third main thing is key. Okay, but you are missing the main point. So आप Python में दोनों RX और दोनों को read कर सकते हैं, CSV Excel दोनों को read कर सकते हो. That is also not an issue.
अभिमन्यु सर, व्हाट इज, सो एक्सेल में जो आपकी लिमिट होती है नंबर ऑफ रोज की, दैट इज 10,48,516, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं अभिमन्यु सर एक्सेल में? I think more than 65,000, I think. Okay. So, okay, we will check. So, okay, how many of you have done this code? Then we will check the Excel, and I will just let you know what is the difference between these two main. Because these will come to the core of your working when you will work on the data science project, because आपका data CSV in Excel में होगा. I have done it with both the append and write, and both are working in the same way. So what is the difference? Append and write both are working in the same way. Yeah. Okay. So आपने क्या किया होगा? आपने append में किया, you just ran it single time, ऐसे and you just close it, correct? So do one thing, append में है ना, just select this file, ठीक है? Or you can do one thing, you can do it. Append में for those who are not getting the difference, just run this file once, केवल लाइन एक बार run करो, and run this file for 5 times. So 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? And then see how it is creating the impact, ठीक है? Similarly do for the write mode. यहाँ पे write कीजिए, W कीजिए, press F9, and again then go on this file and then execute this line for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. So एक बार आप ये कीजिए. I think that will clear your doubt how it is working. ठीक है? So, okay, we were talking about the number of column and rows. Okay, so just we are going to this folder. So the main difference between CA, so okay, tell me one thing. How many of you have implemented formulas in Excel? Excel में formulas कितनी? How many of you have put it? How many of you used formulas in Excel? Yeah, I have used. I have. Like VLOOKUP, concat, some basic functions. अभिमन्यु सर, CSV में यूज किया है कभी फॉर्मूला? नहीं. हाँ, CSV फाइल में भी यूज किया है, मतलब एक्सेल में ही खोल के यूज किया है, टेक्स्ट में नहीं किया है. CSV में we can't put the formula. You can put the formula, Rishabh, but वहाँ पे twist है. Actually there is a twist. ठीक है. Excel में कितनी शीट्स पे काम किया अभिमन्यु सर? Max. मैक्स 2 and 3 सीट्स. ठीक है. CSV में? CSV में सीट्स नहीं होते. अगर आप CSV फाइल को आप सेव करोगे तो एक वर्कबुक में एक ही वर्कशीट सेव करता है वो. करेक्ट, बट ऑन द स्पॉट आप मल्टीपल स्प्रेडशीट उसमें ओपन कर सकते हो. हाँ. This is much of a clarity which I'll give you. देखो, I'm doing the entire screen sharing. Okay. So are you able to see the folder? So are you able to see the screen? Yes. ठीक है. So I have created this Excel file. तो Excel file आपकी normally Microsoft Excel worksheet के नाम से सेव होती है. CSV is normally saved with Microsoft comma variable type. That is the name. उसको भी हम create करेंगे. And the other one is, so यहाँ से आप डायरेक्टली CSV सेव कर नहीं सकते. ठीक है. उसके लिए आप Excel में आके हम उसको सेव करेंगे. So I'm just opening this Excel file. ठीक है. मैंने Excel file open किया. So if I see this is, I am having this sheet, okay, and sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. So मैंने multiple sheets बना ली, and those who are aware of the formula, तो यहाँ पे क्या था? 1. Okay, now referring to the first question,
how many are the number of rows? So the number of rows in your Excel are 10,48,576. ठीक है, so इससे ज्यादा इसमें rows नहीं होते. If I talk about column, तो column आपके वैसे एक्सेल डी तक जाते हैं, but how can I count it? I'll just take one, ठीक है, Control C, and मैं end तक जाऊंगा, it will be Control C करके Control Shift and right arrow will select the entire row. When I press enter, ठीक है, so ये पूरे में पेस्ट हो गया, and if I whenever I go and check the sum of it, so मैं इसका sum check कर सकता हूँ, so it will be the total number of rows in are 16,384, sorry columns. So Excel में total number of columns होते हैं 16,384 and total number of rows in Excel are 10,48,576 and इसमें ऐसे फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है, इक्वल टू सम किया तो ये पूछेगा किस चीज का सम करना है, इक्वल टू सम, these are the various formulas which you can put. तो यहाँ पे आप if else भी लगा सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे वी लुकअप भी होता है, सम मैंने किया था यहाँ पे, सो सम से आप चेक कर सकते हो how many columns are there. So the total number of columns is 16,384. So if I go and if I like save a new workbook and so यहाँ पे मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन किया है, सॉरी, एंड इफ आई गो एंड सेव न्यू, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिवट टेबल एंड ऑल दिस इज देयर, ओके, जस्ट होल्ड अ सेकंड, ठीक है, सो ये जो बनी थी इसमें दो फाइल बनी है, सो मैंने सेव इट अप, सो यहाँ पे शीट 1 2 3 4 अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने ओपन दिस अप अगेन, यू विल सी कि सारी की सारी शीट्स भी है, शीट 1 2 3 4 आर देयर एंड द फॉर्मूला स्टिल इज देयर, ठीक है, सो दिस इज विद एक्सेल, लेट मी सी अ CSV फाइल. So I'm showing you example of a CSV file. So this is a CSV file, student review data. तो इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सेल में आपका ऐसे लिखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक एंड हियर इट इज रिटन एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. सो ये CSV है, ये आपकी एक्सेल है, ठीक है, नाउ आई एम ओपनिंग दिस CSV फाइल, ठीक है, ये एक्सेल की तरह ही, लाइक इट इज क्वाइट सिमिलर टू इट, बट देयर इज वन थिंग, अगर मैं इसमें एक नई शीट बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट क्लियर कि इसमें कितने रोज है, जैसे एक नई शीट में करके चेक करते हैं, सो आई एम सेइंग लेट्स चेक हाउ मेनी रोज आर देयर, सो द नंबर ऑफ रोज आर सिमिलर टू योर एक्सेल 10,48,576, so एक्सेल एंड CSV में नंबर ऑफ रोज रिमेन्स सेम, ठीक है, and if I check the number of columns again, I will do Control C, Control Alt V, Control C, sorry, and Control V, ठीक है, मैंने वापस सभी कॉलम्स में 1 1 1 डाल दिया. What I will do now, I will take a sum of it. तो आप CSV में फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है. Now tell me what is the difference. So आप मल्टीपल शीट भी ओपन कर सकते हो. Abhimanyu sir, are you able to see the screen? Yes, but when we going to save, then we can get the message कि only focused sheet को ही वो सेव करेगा, बाकी को नहीं. So अब जैसे मेरा इसमें 3 शीट एक्सेल की तरह, ये मेरी पहली शीट, ये मेरी शीट 2 है, ये मेरी शीट 3 है, ठीक है, these are names. So इसमें मैं सम भी लगा सकता हूँ जो नॉर्मली एक्सेल में लगता है. अब मैं क्या करूंगा, मैंने जस्ट क्लोजिंग इट अप, मेरी 3 शीट है इसमें, एंड आई एम जस्ट सेइंग यस सेव, ये पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, सेव, ओके. अब मैं जिस फाइल को, जब CSV फाइल को ओपन करूंगा ना,
तो जिस शीट पे मैंने लास्ट इसको क्लोज किया था, जो मेरे में ओपन थी, सिर्फ वो शीट बचती है, बाकी की शीट डिलीट हो जाती है। तो सीएसवी जो स्टोर होती है वो सिंगल एक शीट के साथ स्टोर होती है। ऑन द करंट आप मल्टीपल शीट इसमें ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस शीट के साथ इसको अभी क्लोज कर दूंगा तो मेरी ये शीट सेव होगी सिर्फ। सो अगर मेरे को इसको स्टोर करना है तो मेरी ये शीट स्टोर हुई, ठीक है। एंड इफ आई सी, मेरा फॉर्मूला भी यहाँ पे गायब हो गया। तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया था वो मेरा गायब हो गया, ठीक है। सो दैट मेन डिफरेंस। एंड इफ आई जस्ट गो बैक टू द एक्सेल नाउ, दिस वन वाज माय एक्सेल। सो CSV में, एक्सेल में मेरी सारी शीट्स अभी भी है, एक भी नहीं गई। एंड यहाँ पे मेरा फॉर्मूला इज स्टिल अवेलेबल। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड एक्सेल इज, जो भी अगर आप एक्सेल में काम करोगे उसमें फॉर्मूला सेव रहेंगे। CSV में आपने फाइल क्लोज किया, खाली वैल्यू रहेगी, सो सिर्फ वैल्यूज रहेगी, फॉर्मूला नहीं रहेगा, ठीक है। सो डू मेक श्योर कभी आप एक्सेल में काम कर रहे हो, मतलब नॉर्मली हम क्या प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर वर्किंग इन एक्सेल बिकॉज आप कई बार क्या होता है कि यू जस्ट ऑटोमेट द थिंग्स यूजिंग फॉर्मूलाज इन एक्सेल। तो एक जैसे फर्स्ट रो है, सेकंड रो इज डिपेंडेंट ऑन दिस, थर्ड रो इज डिपेंडेंट ऑन द सेकंड रो, फोर्थ, तो ऐसे हम चेन करके हम फॉर्मूला से अपना एक फाइल बना लेते हैं। तो अगर आप सो दैट इज व्हाई वी वर्क इन एक्सेल, बिकॉज वो फॉर्मूला सेव रह जाएगा। सो हमें सिर्फ इस वैल्यू को अपडेट करना है, ऑल द थिंग्स, ऑल द शीट विल गेट अपडेटेड एक्सेल में, ठीक है। दिस इज द वन थिंग। एंड एक्सेल में आपकी सारी शीट्स भी सेव रहती है। आपकी CSV में अगर इसमें को मैं बंद करता हूँ अगेन जस्ट टू शो यू, सो मैंने 3 शीट के साथ इसको अभी किया था, एंड इसको मैं फिर से अगर ओपन करूंगा तो उसमें सिर्फ एक ही शीट है, एंड दैट टू दिस वन। तो एक्सेल में आपकी जितनी शीट आप क्रिएट करते हो सबकी सब सेव होती है, एंड व्हेन एवर यू ओपन इट अप आपको सारी शीट भी मिलेगी, आपको फॉर्मूला भी मिलेंगे। CSV में ना तो आपको सारी शीट्स मिलेंगी, द लास्ट शीट विच यू, जैसे मैंने इस शीट के साथ इसको क्लोज किया तो ये शीट मिलेगी, एंड ना आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड एक्सेल। इसलिए हम नॉर्मली, एंड द सेकंड थिंग व्हिच ऋषभ वाज टेलिंग कि हम इसको CSV को नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्यों लोड करते हैं, दैट इज व्हाई वी प्रेफर इट, बिकॉज द रीजन इज क्योंकि ना इसमें सिर्फ वैल्यूज है। कई बार क्या होता है जैसे मैंने अगर यहाँ से कुछ सेल डिलीट कर दिया, जैसे ये वैल्यू मैंने डिलीट कर दी, एंड अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा ना तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। मतलब इट विल से देयर इज नथिंग, या जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि सिंपल मैं इसको CSV में अगर लोड करता हूँ तो मेरे पास सिंपल ये ऊपर वाली रो मिल जाएगी, एंड इट विल बी क्लियर दैट हियर इज नथिंग। बट एक्सेल में जब मैं इसको लोड करूंगा तो यहाँ पे वो np.nan बता देता है, अगर देयर इज अ नल वैल्यू, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाएगा जिससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड CSV। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट? गौरव, अभिमन्यु, ऋषभ, No, शुभांशु, Gurdeep. क्लियर हुआ एक्सेल और CSV में डिफरेंस? तो दोनों की वर्किंग सेम है, बस जब फाइल को आप सेव करते हो ना तब डिफरेंस आता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस एक्सेल and this one too. I'm going back to my spider python, ठीक है। now what I will be doing is, so दीक्षिता आपको क्लियर हुआ the main difference between these? Yes, to sir. write on the ये formula. वाला नहीं हुआ। W and A वाला सेम है वो, like I have run this line for 5 times in with A, तो उसने 5 times ही वो शो करके, and after that I closed it, उसमें वो फाइल बंद हो गया। एंड देन मैंने W के साथ किया, तो जस्ट टू सी द डिफरेंस मैंने उसको 7 टाइम्स रन किया तो उसने 7 टाइम्स ही लाइन दिखाया और फिर वो क्लोज हो गया। तो ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग द प्रेजेंटर तो हम चेक करेंगे व्हाट द इशू इज, ठीक है। तो जस्ट शेयर योर स्क्रीन, यू कैन लेट मी नो। Are you able to see? यस, आई एम एबल टू सी। हाँ, तो ये हमने A के साथ इसको रन किया F9 एंड दिस किया हमने, तो एक काम कीजिए दीक्षिता, डाटा सेव डॉट टीएक्सटी को डाउन कर दो यहाँ से एक बार। यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से ना।
नहीं, आपका स्पाइडर में खुला हुआ है ना ये temp.py के साइड में, वहां से। हाँ जी, हाँ, इसको डिलीट कर दो ना एक बार। हाँ डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं। डन। हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ से रन कर। ठीक है। डाटा सेव के नाम से व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे डाटा सेव का नाम चेंज कर दीजिए, लाइक डू इट। ओके चलो ठीक है, आपका डिलीट ही हो गया। सो स्टार्ट विद, so you are executing the line number 20। 25, 25, 26, ठीक है। हाँ so do one हाँ, thing, 25 and 26 को एक बार सिलेक्ट कीजिए, दोनों लाइंस को। ओके डन। एक्चुअली आई थिंक देयर इज अ लैग, लाइक आई एम मेरे में विजिबल नहीं हो रहा अच्छा द एग्जीक्यूशन। हाँ ठीक है, मेरे को दिख रहा है। सबके में लैग आ रहा है, सिर्फ मेरे में लैग आ रहा है, लाइक ऋषभ, अविरल, गौरव, सबके में ये अभिमन्यु सर सबके में लैग के साथ दिख रहा है। यस, ये मेरे में। Gurdeep, it's taking time to reflect ना। Okay, okay, yes, yes, yes. So now what you can do is Dikshita, press F9, मतलब जो आप रन के लिए आपके में F9 ही होगा, कंट्रोल एंटर बैक में। ठीक है। हाँ, जस्ट रन इट मल्टीपल टाइम्स रन कीजिए। अच्छा, इसी को ही हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। Now just open that file, data_save.txt। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास। Okay, 8 टाइम्स दिख गया ना। Now do one thing, go हाँ, back to temp.py, इसको डिलीट मत करो। अब इससे जो अच्छा लाइन नंबर 29 एंड 30 को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। and run it, press it 8 times again, वापस run it 5 times again। तो पहले से वैसे हमारे उसमें इंफॉर्मेशन है, डेटा है, ठीक है, बट हम इसको वापस 5 बार रन कर रहे हैं। ठीक है, 5 टाइम्स कर दिया रन। ओके, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दैट फाइल अगेन। अभी ये 1 टाइम दिखा रहा है। यस, सो पहले जो भी आपने पहले अपेंड मोड में 5-6 बार लिखा आया था, सो वो सब एक्चुअली जब आपने राइट मोड में किया तो पहले का सब कुछ डिलीट हुआ, एंड दैट शोज यू 1 टाइम। सो आपने भले ही 5 टाइम्स किया है, बट ईच एंड एवरी टाइम इट इज डिलीटिंग द प्रीवियस कोड, ठीक है। सो पहले आई ठीक। थिंक पहले आप नॉर्मली एक लाइन वो रन कर पा रहे होंगे, बट चलो, हाँ, इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ टू यू ऑल, दीक्षिता? या समझ आया? नाउ इट इज क्लियर। सो यस सर। थैंक यू। सो यू कैन मेक मी तो द ये प्रेजेंटर इसमें अगेन। तो हाँ हमने जी, रन कर लिया। हाँ, इसमें तो सर हमने रन कर लिया, बट इसका बेसिक मतलब पर्पस क्या है? सो इसका एक्चुअल बेसिक पर्पस क्या है, सो इसका यूज किधर आता है? इफ आई टेल यू द यूज ऑफ इट, सो नॉर्मली जो आप वेब स्क्रैपिंग करते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको वेब स्क्रैपिंग बताया, सो डू यू नो व्हाट वेब स्क्रैपिंग इज? यस, यू डिड टोल्ड अस। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग हो गए, आप ट्विटर से डेटा फैच करते हो, ठीक है। सो ओके, लेट मी शो यू अ कोड। सो ट्विटर से डेटा फैच करोगे तो इट इज मच ऑफ अ इनफाइनाइट लूप, मतलब आई वांट टू जस्ट शो यू आफ्टरवर्ड। तो इनफाइनाइट लूप में क्या होगा, जब इसको व्हाइल लूप में यूज करोगे ना, तो एक इनफाइनाइट लूप में जो भी आप प्रिंट करते जा रहे हो वो आपकी फाइल में सेव होता रहेगा, ठीक है। जी। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, तो जो भी आपकी ट्वीट प्रिंट होगी आप उसको किसी फाइल में सेव कर सकते हो। सो दीज आर मच ऑफ फंक्शनैलिटी जो आपकी अवेलेबल है प्रिंट में। इट इज अप टू द यूज केस कि आपको कब यूज आता है। सो नॉर्मली जो मैं आई नॉर्मली यूज इट व्हेन आई जस्ट फैच डेटा फ्रॉम द ट्विटर एपीआई, और मैं वेब स्क्रैप करता हूँ यूजिंग द इनफाइनाइट लूप, तो तब मेरे को नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। सो दिस वाज द अदर वन। हैव यू ऑल? It's more like कि infinitely loop चलती ना रहे and one time वो बस fetch करे. Is it like that? अगर आप सिंगल टाइम कर रहे हो तो उसमें नॉर्मली यूज नहीं आता इसका, ठीक है। या जैसे आप कोई फॉर लूप यूज कर रहे हो, आइटरेटिव लूप है, ठीक है, एंड यू वांट टू चेक द रिजल्ट, कैसे रिजल्ट मेरे क्या प्रिंट ऑफ फंक्शनलिटी है, कुछ एरर डिबग कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। So it is more of much of, you can say, a functionality provided in the print command, and आप so normally इसको जब iterative loops होते हैं, for loop या कुछ infinite loop हुआ, not infinite is very less, but normally iterative loops में आप इसको use कर सकते हो।
टू सेव व्हाट इज बीइंग प्रिंटेड। जैसे आपको देखना है कि जो मेरा प्रिंट हो रहा है, मतलब जो भी कुछ रिपोर्ट जनरेट हो रही है प्रिंटिंग प्रिंट कमांड का यूज करके, वो एक साथ साथ सेव होती रहे। दैट इज अ मोर ऑफ अ यूज केस ऑफ इट। ठीक है। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव यू ट्राइड दिस डॉट सीएसवी? इसमें डॉट सीएसवी ट्राई किया आपने? नहीं, अभी तो नहीं किया। तो इसमें एक बार डॉट सीएसवी ट्राई करते हैं एज रिक्वेस्टेड बाय ऋषभ। तो वी आर ऋषभ गौरव आई थिंक। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सेइंग फाइल अंडरस्कोर सेव इज इक्वल टू ओपन डेटा अंडरस्कोर सेव डॉट सीएसवी किया है मैंने, एंड उसको मैंने फिर अपेंड मोड में ओपन किया है, एंड आई एम जस्ट रनिंग दिस अगेन। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। It's तो working. डेटा, My screen is not visible. ठीक है, so data my screen is not visible. Okay, sorry, I Not just forgot to perform the screen sharing. Is it visible now? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेटा को सेव डॉट सीएसवी किया हुआ है, डॉट सीएसवी कर दिया। ठीक है, एंड आपकी सीएसवी फाइल आपके स्पाइडर में खुल जाती है, एक्सेल नहीं खुलती बस। सो मैंने जस्ट रन इट अगेन एंड अगेन, आई एम जस्ट रनिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स रन किया अपेंड के साथ। सो मैंने ओपन दिस फाइल, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा तो सीएसवी आपकी डायरेक्ट, बिकॉज एज इट इज अ कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, तो खुल गया। बट लेट मी गो टू द फोल्डर एंड जस्ट लैंड फ्रॉम देयर, आई विल जस्ट ओपन इट। तो डेटा को सेव अगर मैं ओपन करता हूँ, सो इट इज मोर ऑफ अ रीड ओनली। तो आपकी वैल्यूज सेव हो रही है। ठीक है, आपके कॉलम में वैल्यू जो भी आप प्रिंट कर रहे हो वो सारी चीजें सेव होती जा रही है सीएसवी में। ठीक है, नाउ आई क्लोज इट अप। बट ये नॉर्मली आपकी एक्सेल में नहीं होती। व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर एक्सेल, दीक्षिता? हैव यू डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज? I think XLV. नहीं, I don't know. Sorry. Okay, no issue. XSL. Correct. XL. So it is XLSX. So the extension हाँ. for Excel is .XLSX, and अब मैं इसको रन करता हूँ। So what I'm doing is, okay, मेरे को just इसको close करने दो, otherwise वो corrupted हो जाएगा, वो फिर save नहीं, मेरे को close नहीं, delete नहीं होगा। So what I'm doing is, मैं इसको Excel में try करता हूँ, just append and doing it fman यूज करके। So एक Excel फाइल बन गई है। ठीक है, so let me check Excel भी whether it is स्पाइडर में ओपन हो जाती है। एक्सेल स्पाइडर में ओपन नहीं होती सर। तो अगर मैं इसको यहाँ से भी अगर ओपन कर हो रही है तो सो इट इज मच ऑफ अ टेक्स्ट फाइल जो आपकी अगर सेव है, जैसे मेरे पास एक एक्सेल हो रहा है, ये ओपन हो न्यू माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये नहीं ओपन होगी। वो मच ऑफ ऐसा सीएसवी स्टोर कर रहा होगा वैसा एट अ बैक एंड, नॉट एज अ एक्सेल फाइल। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। तो जैसे मेरे पास ये एक्सेल था जो मैंने आपको दिखाया था, इफ आई जस्ट डबल क्लिक इट तो मेरे में ये नहीं हो रहा है। सो ये क्या हुआ, ये पूरे एक्सेल है, बट ये नॉर्मली स्पाइडर में नहीं खुलता। नॉर्मली एक्सेल फाइल स्पाइडर में नहीं खुलते। सो इफ आई जस्ट शो इट डेटा अंडरस्कोर सेव, ये वाला था एक्सेल वर्कशीट। सो see this is the error I'm getting. Actually इसने डॉट XLX सेव कर दिया है नाम। ठीक है, बट ये फाइल अगर आप फाइल फोल्डर में जाके ओपन करोगे तो फाइल ओपन नहीं हो रहा। So are you okay? I'm just showing the screen share. मैंने एप्लीकेशन किया हुआ है। Let me screen share the complete Excel cannot open the file because of the So, command or extension. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, सो जो मेरा ये ओके ओके सो जब मैंने ये फाइल सेव किया था डेटा अंडरस्कोर सेव डॉट XLSX, जो यहाँ पे इफ यू कैन सी डॉट XLSX से, तो जो मैंने इसको सेव किया, सो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ whether it is getting open or not. So when I run it up ना, तो ये मेरे को एरर आ रहा है, and same error Rishabh is also getting. So it is saying Excel cannot open the file data ये because the file format or file extension is not valid. तो actually backend पे much of ये इसको as a CSV स्टोर कर रहा है, but उसको नाम इसने .XLSX कर दिया, so ये फाइल करप्ट है, Excel इसको ओपन नहीं कर सकता। Gurdeep, you are getting confused with Rishabh and my name. I'm Gaurav. Actually, I am just not seeing the screen में थोड़ा आवाज को आइडेंटिफाई करके। सो अभिमन्यु की voice is quite separate, Subhanshu, Dikshita of course, and so there is somewhat similarity between your voice and Rishabh voice. तो वो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने में, और मेरे को भी लगता है कि आई एम जस्ट गेटिंग confused between your voices.
So and you would be thinking, अच्छा ऋषभ मैंने कब बोल दिया ये? ठीक है, मैं calculate मत करता हूँ. Yeah. So Excel पे normally Excel save नहीं करता. That is much of a you can say. Okay, ये and ये close भी नहीं हो रहा because मैंने Asis को close नहीं किया. Just let me run this command so that it finalize the execution. And now I'm just closing it. But try again करते हैं. Just emptying this folder. So shift delete, delete, shift delete, delete. So okay, this was much with the print functionality. These are the main parameters of print functionality. इसके अंदर एक flush का भी parameter होता है, but that is not of use first because वो much of flush को retrieve, so that is somewhat related with your memory. अगर memory full हो जाए तो उस case में उसका कुछ impact नहीं आता. ठीक है. So print But के why अंदर Excel? ज़्यादा But why we are not able to open the Excel from our machine? So actually that is not an Excel file. जो data underscore save dot XLSX है ना, तो इसने XLSX के extension दे दी, but वो एक CSV file है backend पे. Okay, ठीक है. so what you're saying is, I mean, we cannot save data in Excel file like, I mean, the way we are doing it for CSV or text file. Correct. So आप यहाँ से Excel file में data save नहीं कर सकते. You need to use a different library. वो much of Okay, हम आगे that is a Pandas library. तो Pandas से आप data save कर सकते हो Excel में easily, data frame बना के. ठीक है. But print में आप नहीं कर सकते. मतलब normally file open करके इससे नहीं कर सकते. या आपको एक Excel writer use करना पड़ेगा. By open you can just modify the CSV and the text file .txt. ठीक है. Is it clear to you all? Yeah. Okay. Oh, now so this is much with the print command. Now moving to some of the mathematical operation. ठीक है. So ये मेरा print यहाँ पे खत्म हुआ. Now going to the math part. So I'm creating a new variable that is again your a, and I'm saying okay पहले variable declaration पे चलते हैं. How we will declare the variables. So जैसे normally this is one of the way a is equal to b, a is equal to 5. ठीक है. And when I do it F9, तो मेरा a तो ये पहले भी था, a is equal to 5 था. Okay. Now tell me one thing, when I will do a is equal to 5.5, this question goes to Shubhanshu. Actually, Shubhanshu is not able to hear due to some connectivity issue, I think. But Shubhanshu, I'm audible to you. I think not. Okay. So, ठीक है. So a question goes to anyone of all of you. So अगर मैं a is equal to 5.5 करूंगा तो मेरे को एरर देगा, क्या देगा, या रन कर जाएगा, ओवरराइट करेगा, नहीं करेगा, एरर देगा, क्या होगा? ओवरराइट कर देगा. Override कर देगा. A will Correct. attain the 5.5. So a is equal to 5.5 कर दिया. Okay, now tell me one thing. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक लूप बना रहा हूँ. a is equal to 5.5 था. I am saying चलो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये क्या करेगा? तो अगर इसके बाद मैं प्रिंट ए करता हूँ तो पहले आई विल गो विद सीक्वेंस. दीक्षिता, अकॉर्डिंग टू यू क्या मेरी ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? सर इसमें तो ये 5.5, ये तो एरर आएगा सर. इसको अगर मैं रन ही नहीं कंप्लीट करेगा. करूंगा, ओके, मतलब रन नहीं करेगा, सेल्फ रेफरेंस का लूप एरर देगा जो नॉर्मली हमें एक्सेल में मिलता है. हाँ, क्योंकि आपने सर सेम मतलब एक वेरिएबल लिया और उसको वापस उसमें ऐड करें तो वो एरर, उसको प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं चीज मिली है, इसलिए वो एरर देगा. So Gaurav sir, according It to you, will run and it will add up the value. so आपका आंसर क्या आएगा? इसका 10.5. Okay. So Abhimanyu sir and Rishabh, do you agree with Dikshita or you agree with Gaurav? Abhimanyu, आप चक्कर भी सोल्व करने को नहीं चले गए. सर वो जो लेटेस्ट वैल्यू ए की जो साइन है वही प्रिंट करेगा, क्योंकि फिर जो कि हम
नया वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं उसको हमने a इज इक्वल टू करके वो उसको हमने मेंशन नहीं किया है, इसलिए तो आपके हिसाब से ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अभी सर 10.5। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 10.5। अभिमन्यु सर आप हो? Okay. अभिमन्यु सर काफी बिजी। 10.5 10.5 या एरर आएगा सर, बताइए एक बार, ये खुद को रेफर नहीं कर रहा। एरर नहीं आएगा गुरदीप, एरर नहीं आएगा। तो आप इतने बट सर कॉन्फिडेंट सी वेरिएबल यूज करेंगे तो एरर तो आएगा ही। आप रन कर दीजिए ना सर। मैं रन नहीं अगर कर रहा हूँ। अगर हम इसमें कोई डायमेंशन, if you will take any dimension value, then it will throw error. सो नॉर्मली इसी एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है कि जो ये कंफ्यूजन होते हैं ना, सो व्हेन वी डिस्कस ओवर अ थिंग तो चीज थोड़ी दिमाग में ज्यादा टाइम लगा देती है। सो a इक्वल टू 5, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी a की वैल्यू एट प्रेजेंट 5 है। व्हेन आई रन दिस अप तो मेरी वैल्यू 10.5 आ गई। ठीक है, सो एक्चुअली हुआ क्या, तो मेरी a की वैल्यू 5 थी। ठीक है, वो मेरी यहाँ पे, सो इफ आई एम राइटिंग हियर तो मेरा यहाँ पे a का ये दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड जो मेरा कभी क्वेश्चन आई वाज आस्किंग, जो आपका एलोकेशन होता है हाउ इट हैपेंस, तो जो एलोकेशन है इट हैपेंस दिस वे, जो आपका इट हैपेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो भी कुछ वैल्यू है वो यहाँ से कोई वैल्यू कैलकुलेट होगा, इट विल गो हियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके नाउ एंड ओके दीक्षिता, नाउ टेल मी वन थिंग, a इक्वल टू a प्लस 1, अब क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं इस तीनों को चलाऊंगा? 10 plus 5 11.5। करेक्ट, सो दिस इज वन। एंड आप इसको पता है a प्लस 1 को, a इक्वल टू a प्लस 1 को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, a प्लस इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, सो इफ आई रन इट तो मेरी वैल्यू 12.5 हो गई। एंड सिमिलरली a, so this is much of a short form of this, a इक्वल टू a प्लस 1 को आप ऐसे भी रन कर सकते हो, a प्लस इक्वल टू 1, एंड आप a इक्वल टू a माइनस 1 को ऐसे भी कर सकते हो, a माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों चलते हैं कमांड। ठीक है, सो आपकी वैल्यू ट्वाइस पर डिलीट हो गई। सो दिस मच ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप मल्टीपल वेरिएबल्स को multiple, so you can assign multiple values to a variable, multiple variables in a single one also, जैसे a b c d, मैं इनको साथ साथ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो इफ आई रन इट अप, सो क्या हुआ, मेरे एक टाइम में मैंने 4 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। सो दिस इज मल्टी वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है, सो बट द मेन लॉजिक या मेन कंडीशन फॉर दिस इज, जितने आपके वेरिएबल्स इस साइड है ना उतनी आपकी वैल्यूज इस साइड होनी चाहिए। इफ आई जस्ट डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू एंड इफ आई प्रेस F9 तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। सो इसने कहा मेरे को एक्सपेक्टेड था 4, बिकॉज मेरे यहाँ पे 4 वेरिएबल थे। ठीक है, बट मेरे को मिले 3 और मेरे को 3 वैल्यू मिली। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज क्रिएटिंग अ इशू फॉर इट। सो आप यहाँ पे, एंड अगर आप यहाँ पे 7 भी डाल दो, लाइक इफ यू पुट 5 वैल्यूज हियर एंड यहाँ पे आपके 4 रहता है, एंड आल्सो इट विल गिव यू एरर। सो इट विल से टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 4 बट आपको उससे ज्यादा वैल्यू मिल गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। सो आप ए बी सी डी एक बारी में चारों वैल्यूज को, 4 वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट टिल नाउ? No good. No sir। Great. So now what we will do is, so this is much of variable assignment जो हमने किया है इसमें। Okay. Sorry. So this was the variable assignment part. Now we will go to the next thing. We will perform mathematical operation. ठीक है, so mathematical operation हम perform करेंगे and that is how we will do it. So फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी सब कुछ है। सो वी आर सेइंग सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपको एडिशन करना है, दिस इज द थिंग। सो इसमें क्या होगा, जो आपकी ए एंड बी की वैल्यू 1 + 2, इट विल से सी इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3। सो आपकी सी की वैल्यू क्या अपडेट आके हुई है, इट इज 3। ठीक है, अदर वन व्हाट वी कैन डू इज सी, सो ये एडिशन के लिए था, C1 इक्वल टू ए
minus b. तो जो c1 वेरिएबल बना है it will be -1. So because a and b की वैल्यू क्या है 1 and 2. So what we can do is just let me restart the kernel ताकि जितने भी वेरिएबल्स है सब क्लियर अप हो जाएंगे and थोड़ा it will be much of clean. अभी थोड़ा होस्ट हो जाता है. ठीक है. So everything is again reset to default. ठीक है. So मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दो वेरिएबल सब बना रहा हूँ a and b. ठीक है. a b हो गए दो वेरिएबल. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल c दैट इज a plus b एंड इसको मैंने रन किया तो मेरा c वेरिएबल है 3. नाउ मैं d वेरिएबल कर रहा हूँ d दैट इज इक्वल टू b minus a. आई कैन से a minus b. इसको रन किया तो d की वैल्यू आई है -1 बिकॉज a was 1 b was 2 so -1. मल्टीप्लिकेशन के लिए इट इज a स्टार b. सो आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसे परफॉर्म होगा. यू कैन सी द वैल्यूज हियर. ठीक है. एंड सो आई एम जस्ट शोइंग द रिजल्ट हियर और आई कैन जस्ट टू प्रिंट हियर आल्सो. फॉर डिवीजन इट इज a डिवाइड बाय b एंड इफ आई रन इट सो ओके व्हाट वी कैन डू इज इसको ऐसे करके रन कीजिए. रन हो जाएगा. एंड सो अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट भी चेक करना है तो शॉर्टकट फॉर्म इज f को सिलेक्ट करके F9 दबा दो तो यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा. ठीक है. सो f इट इज 0.5. ओके. सो हमने एडिशन कर लिया, डिवीजन माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग. f1 इज इक्वल मेरे को रिमाइंडर आइडेंटिफाई करना है. सो डू राइट द सिंबल व्हिच आई विल यूज इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में कैन यू जस्ट राइट द सिंबल which I will use for getting the remainder. Okay. Correct. So, but वो एक बार होगा. हाँ. So it is single. So it will be a percentage b. ठीक है. So f1 will be a percentage b and it will tell कि अगर मैं 1 divided by 2 करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना है. So it is 1. Let me just print the value here also. So the remainder is 1 or like a and b. So a was 1 and b was 2. So 1 divided by 2 the remainder is 1. ठीक है. Okay, now tell me one thing. मेरे को अगर पर्टिकुलर किसी चीज का स्क्वायर निकालना है या क्यूब करना है then what is the symbol I will be using? So मेरे को डिवीजन so रिमाइंडर के लिए I will use the modulus. Multiply. Just write in the chat box according to क्या होगा आपके हिसाब से. Okay. A cap. Anyone else? So you can have your guess altogether. Gaurav sir for square. ठीक है. And cube के लिए क्या होगा फिर? सर द वैल्यू जो सिंबल देके यू कैन पुट द स्क्वायर है तो उसको ट्वाइस कर सकते हो. अगर उसको अगर 4 टाइम करना 5 टाइम करना जो वैसे करना वैसे कर सकते हो. दीक्षिता is going to play. So कह रहे क्यूब के लिए हम 3 स्टार डालेंगे. So this one so Gaurav you are correct. So दीक्षिता जो डबल स्क्वायर है that is equal to your. ठीक है. So जैसे 2 square 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 2 अगर हम इसको ऐसे करते हैं so we get a value. Okay, which let me print f2. So इससे क्या होगा जो मेरी वैल्यू आई 4. ठीक है. So यहाँ पे this and if I do it 3 it will be 8. So actually आप this is your power symbol कि to the power कितना. ठीक है. आप इसको 4 करोगे it will be 52. ठीक है. So this is the thing. The other one is okay जो हम ऋषभ सर हमें एक बता रहे थे पहले. अगर हम उसको भी ट्राई करते हैं let's see what we get. So cap जो हमें मिलता है हमें cap मिलता है 6 के ऊपर. So shift and 6. Okay, just let me run it. But here you don't get that. I think it is performing much of an addition operation. हाँ, addition कर रहे हैं. ठीक है. So and okay, tell me one thing. If I want to get the square root, तो क्या होगा? Just write in your chat box. देखते कौन पहले लिखता है. Square root के लिए क्या करें? सोचो सोचो. Be smart. आंसर तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है. उसमें हम काम कर भी रहे हैं.
I didn't see any chat till now. वो तुम्हारी आंखों के सामने है, मतलब द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा बहुत ट्वीक तो करना पड़ेगा, मतलब 90% इज इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए, क्या करूं? ऋषभ, अभिमन्यु, दीक्षिता, गौरव, शुभांशु, क्या लगता है स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब जस्ट इफ यू सी ऑन द स्क्रीन Double. यू विल गेट an आइडिया। ओके चलो गौरव, दिस इज ओके, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, मैं इसको भी कवर करूंगा। सो व्हेन यू परफॉर्म डिवीजन देयर इज वन फ्लोट डिवीजन, वन इज द इंटीजर डिवीजन। तो गौरव सर ने वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बट दैट इज गुड, आई विल कवर दैट वन टू। लाइक मेरे को याद आया, दिस इज वन आई कैन कवर। This one is also working. Okay. So you are saying okay, two slash That's slash right. two। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? Suppose Two. 16 का अगर हम निकाल रहे हैं तो 16 this divided by 2. Yeah, 16. It's 16 Double slash 2. Yeah. या तो ये आएगा। Yeah, ये अलग अलग हो रहा था। इसने No, इसने it's क्या okay. किया? It's strong, I guess. इसमें 16 अगर कोई 4 होता ना तो मतलब इन द फर्स्ट केस यू वुड हैव गॉट इट राइट। ओके आई एम Yeah. गेटिंग अ 4। There's operators, I don't know, but normally तो हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करके SQRT से ही कर देते हैं ना। अरे नहीं रे, सो इन दिस Otherwise सी हमें इन दिस फंक्शन पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक अरे जैसे नहीं रे। स्क्वायर के लिए हमने पूरा डेफिनेशन होता है ना, तो उसका हम रिवर्स करके पूरा डिफाइन करेंगे फंक्शन। नहीं दीक्षिता, कई बार थोड़ा सिंपल वे में भी हो जाता है। अब एक बात बताओ, मेरे पास पावर का कमांड है डबल स्क्वायर, ओ सॉरी डबल स्टार। हाँ। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा तो क्या ये काम करेगा? ओ मैं तभी तो कह रहा था आंसर तुम्हारी आंखों के सामने है, तो क्लिक करके देखो। So I was pressing F9 and it is 1.414। Actually मुझे लगा कोई सिंबल के थ्रू हम कर रहे हैं। ओके चलो, ये वैसे दिस इज अ थिंग व्हिच दिस इज वन ऑफ द कांसेप्ट व्हिच दिस इज आल्सो लाइक अ डिवीजन। तो देखो अगर मैं ये करता हूँ 16 डिवाइड बाय 3 तो जो वैल्यू आएगी इट विल बी इन पॉइंट्स 5.333। ठीक है। सो डिवीजन दो टाइप की होती है पाइथन में, ऑफ फ्लोट डिवीजन द इंटीजर डिवीजन। तो फ्लोट में अगर आप सिंगल डैश डालते हो तो आपकी फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप दो डैश डाल दोगे इट इज द इंटीजर डिवीजन। ठीक है। सो आपको सिर्फ 5 मिलेगा, मतलब वो सिर्फ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। दिस इज अ सिंपल, नॉर्मली वैसे हम ये सिंपल वाली डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है। बट आपको कई बार सिर्फ जो राउंडेड ऑफ वैल्यू चाहिए देन यू विल यूज द अदर केस। सो F9 एंड आई गेट दिस वैल्यू। ठीक है। सो ओके, अब जैसे मेरे को स्क्वायर रूट करना था तो मैंने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया, 0.5 किया। ठीक है, एंड आई गॉट दिस। अब मेरे को क्यूब रूट चाहिए विद 3 0.3. I will get the cube root of it। ठीक है। Now the other thing is, अब जैसे बट मेरे को यार ये तो लाइक थोड़ा बहुत जुगाड़ टाइप का, मैंने पॉइंट मैंने डाल दिया। बट इफ आई वांट टू गो विद लाइब्रेरी, सो विल स्टार्ट विद लाइब्रेरी, हम मैथ लाइब्रेरी। ठीक है। हम मैथ लाइब्रेरी यूज करेंगे to get the perform the various operation। So we need to import the math library and we will use this import math। ठीक है। इंपोर्ट मैथ किया। वैसे अब तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट किसी चीज में प्लीज लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू आउट। मुझे डाउट है गुरदीप, मुझे क्यूब और ये समझ नहीं आया रूट जो आपने निकाला ना। ओके तो ठीक है, एक बार हम उसको वापस करते हैं। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना? यस। ठीक है। तो एक्चुअली मैं ओके ये क्लियर है 2 स्क्वायर 2। यस, ये स्क्वायर क्लियर है। ठीक है। सो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना तो स्क्वायर रूट इज मच ऑफ टू द पावर 0.5। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ
इंट में हम कभी फिर ला करके दिखा सकते हैं आपको। जस्ट लेट मी मेक द कंप्लीट एप्लीकेशन विंडो स्क्रीन शेयर। ठीक है, सो नॉर्मली पेंट व्हाट हैपेंस है, जैसे मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए, सो इट इज फॉर एग्जांपल 2, आप ऐसे लिखते हो ब्रैकेट ब्रैकेट टू द पावर 1 बाय 2, करेक्ट। करेक्ट। सो अभी मान लो जैसे, और अगर आपको नॉर्मली स्क्वायर करना हो तो आप क्या करते हो, 2 की पावर 2, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, सो यहाँ पे हम जो हमारी पावर है वो 2 थी, यहाँ पे पावर क्या है 1/2। 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5। सो यहाँ पे मैंने वही किया है। मैंने क्या किया, सो दिस डबल स्टार रिप्रेजेंट द पावर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो इट विल गिव मी द क्यूब रूट 2 का, ठीक है। तो मैंने जो पावर है ना, यहाँ पे मैंने पावर को कर दिया 0.5, so that is showing me the square ओके root, got it। एंड वही अगर आप ओके क्यूब गॉट रूट इट। करोगे तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट में यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई 3 विल बी 0.3333, तो आप उसको नॉर्मली वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो हमने उसको किया था 0.333333 एंड F9 करोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर क्लियर। ठीक है, एनी डाउट एनीवन डू हैव स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकाला है? एंड ये वाला क्लियर हो गया था अभिमन्यु सर, ये आपका डिवीजन, दैट इज फ्लोट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, ठीक है। यस यस। ग्रेट। सो व्हाट वी आर डूइंग टू नाउ, व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज, एक मैथ लाइब्रेरी है, वी विल यूज द मैथ लाइब्रेरी, सम ऑफ द फंक्शनैलिटीज ऑफ मैथ लाइब्रेरी। सो फॉर दैट आपको वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मली इसमें करोगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, जैसे इंपोर्ट मैथ है, अगर आप नॉर्मली आइडल यूज करते हो तो आपको पिप इंस्टॉल मैथ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ लाइब्रेरी भी नहीं होती, एनाकोंडा स्पाइडर इसमें बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है। सो इट इज इंपोर्ट मैथ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरा स्क्वायर रूट के लिए फंक्शनैलिटी मेरे को प्रोवाइडेड है। सो व्हाट आई डू इज, इफ आई से प्रिंट, या उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं f3 इक्वल टू, तो मेरे को इसको मैथ लिखना पड़ेगा डॉट, सो दीज आर ऑल द फंक्शनैलिटीज, दिस इज फॉर द कांस्टेंट पाई के लिए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के लिए है। सो यहाँ पे मैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट एंड आई टू राइट द वैल्यू जिसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, एंड आई विल रन इट। सो मेरे को वही f3 फिर रन करना पड़ेगा, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। सो मैथ लाइब्रेरी में आपको क्या करना पड़ेगा, सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग, हाउ टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी। इंपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, मैथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। एंड आपको मैथ का जो भी फंक्शन यूज करना है, यू राइट इंपोर्ट मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अगर कई बार क्या होता है, हमारे लाइब्रेरी का नाम बहुत बड़ा होता है, लाइक ब्यूटीफुल सूट, तो आप हर जगह ब्यूटीफुल सूट नहीं लिखोगे, या एस के लर्न। सो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट मैथ एज एम कर सकते हो, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, आपने एक बेसिकली इसका एक छोटा नामकरण कर दिया, सो ये इसका छोटा नामकरण है, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे एम डॉट, तो इट विल हैव ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ मैथ एंड यू विल प्रोवाइड टू, एंड आफ्टर दिस यू कैन राइट f3 एंड वापस आप यहाँ पे इसको रन कीजिए। यहाँ पे से कहा था नेम एम इज नॉट डिफाइंड, बट दैट इज दिस ओनली, अब वो एरर नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल, हम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? सर एक डाउट था, जैसे कि हमने एक बार इंपोर्ट कर दिया लाइब्रेरी, तो उसके बाद जरूरी है कि जैसे कि आप अपनी अभी हमें मेंशन किया था स्क्रीन में f3 इज इक्वल टू मैथ डॉट, तो डायरेक्टली हम स्क्वायर्टी मेंशन नहीं कर सकते स्क्वायर रूट के लिए, और जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं? नहीं सर, आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर मैं इसको यूज करूंगा तो आप डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते, इट विल के स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऐसा क्या होगा कि हो सकता है आपका कोई स्क्वायर रूट वेरिएबल नेम हो, तो इसको एक रेफरेंस चाहिए होगा। बट सर हमने ऑलरेडी मैथ की जो लाइब्रेरी है इस पर्टिकुलर हम जो यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर, हमने उसमें अपलोड तो कर दी होगी ना वो चीज। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैथ इंपोर्ट स्टार, ठीक है, तो नाउ इट कैन, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा,
सो व्हाट यू टू डू इज, या तो आप ऐसा करो इंपोर्ट मैथ एज एम, ठीक है, या फिर उसमें स्पेशली आपको नाम देना पड़ेगा यूजिंग दिस m dot, and you need to use whichever operation you want to use, ठीक है। otherwise what you are doing, what you can do is from math से सब कुछ import कर दो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, there is a chance कि your name will collide with your variable names, because यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट लिखा, ये चल गया, ठीक है। इसमें एक दो फंक्शन और होते हैं, f4 इक्वल टू, these are some of the math functionalities, floor and seal, जैसे seal refers to your कमरे की छत, floor refers to your कमरे का बेस, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल seal अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, seal फंक्शन, तो मैं अगर कोई नंबर लिखूंगा 2.3, ये मेरे को उसका अपर लेवल बताएगा, ठीक है, f4। सो व्हेन आई जस्ट रन दिस अप, तो मेरे को ये उसका ऊपर वाला लेवल बताएगा, दैट इज 3, ठीक है। या 2.1 भी हो गया तो ये उसका ऊपर लेवल बताएगा, दैट इज योर 3, द अदर वन इज योर फ्लोर, ठीक है। एंड व्हेन आई रन दिस अप, तो ये मेरे को उसका नीचे वाला लेवल बताएगा, इफ आई डू इट 2.9, तो मेरे को ये इसका बेस बताएगा, व्हाट इज द बेस ऑफ इट। सो ऋषभ सर, आई थिंक ऋषभ यू आर ओनली देयर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, दिस वन की। सो एक्चुअली पता है मेन बात क्या, जैसे आपने यहाँ पे फ्लोर यूज किया, आपने इसमें सील यूज कर लिया, सो दिस आर सम फंक्शन नेम। तो अगर आप सब कुछ इंपोर्ट कर लोगे ना, बिकॉज आप सब कुछ यूज करते नहीं हो किसी लाइब्रेरी का, तो देयर इज अ फाइट, वो कोलिजन हो सकता है बिटवीन द वेरिएबल नेम एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करता हूँ, स्क्वायर रूट को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे, इक्वल टू मैंने 10 कर दिया, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कहेगा दिस इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, बिकॉज स्क्वायर रूट मैंने एक पर्टिकुलर गलती से मैंने एक वेरिएबल नेम में यूज कर लिया, तो आप उसके फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। सो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है कि ओके लाइक वो मेरे को आपको पहले सारे वेरिएबल्स पता होने चाहिए जो आप यूज नहीं करोगे, अदरवाइज। एंड अगर आपने फिर क्या किया, अगर आपने ऐसा कुछ मैशअप हो गया कि आपने कुछ वेरिएबल्स, कुछ नाम्स को आपने वेरिएबल नेम दे दिया, एंड तो उस केस में फिर आपको पूरा कोडिंग चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज देन यू टू गो बैक टू दिस इंपोर्ट मैथ एज m, एंड जिधर आप उसके फंक्शनलिटी को यूज कर रहे हो देयर यू टू राइट m डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उस केस में दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट भी करोगे तब भी चल जाएगा, एंड यहाँ पे अगर जब भी मैं f3 चलाता हूँ तो आई विल गेट दिस वैल्यू। तो स्क्वायर रूट मेरा एक वेरिएबल ही बन गया, बट आई एम एबल टू यूज द स्क्वायर रूट फंक्शन टू। तो दोनों चीजों में एक सेपरेशन रहता है। इज इट क्लियर ऋषभ? ठीक है। सिमिलरली इज द m डॉट फ्लोर, ठीक है, ये वेरियस ऑपरेशन है एंड आई कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग, मैथ के जितने भी ऑपरेशंस हैं ना, जैसे दिस इज द पाई, स्क्वायर रूट, आपको साइन, लॉग, आप लॉग भी निकाल सकते हो, log 2, ठीक है, किसी वैल्यू का, सील, फ्लोर, ठीक है। पावर वाला ऑपरेशन जो मैंने पूछा, डबल स्टार की इक्विवेलेंट है, ये पावर ऑपरेशन है, पावर ऑफ समथिंग टू समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी है, रेडियंस यू कैन गेट, एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 10 फंक्शन, फैबोनिकी सीरीज, डिग्री, log 10 is nan, you check if the float x is a nan not a number, ठीक है। सो आप इसको ये भी चेक कर सकते हो, फैक्टोरियल भी आप चेक कर सकते हो, सो आप इसका फैक्टोरियल चेक कर सकते हो, 10 एक हो, सो यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन। सो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ना, आप मैथ फंक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस द वन, सो मैथ से आप ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, दिस इज अ मैथ लाइब्रेरी व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन हम जो इसमें यूज कर सकते हैं, सो ओके, थोड़ा मच ऑफ ओवरव्यू जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी वैसे क्लासेस नॉट होगा। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल? integer, ओके, float, इंटीजर, string, सो इंटीजर हो गया, करेक्ट, boolean, एंड इंटीजर, बूलियन, ठीक है, एंड string, फ्लोट, स्ट्रिंग, float. ठीक है, ओके। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, वैसे एक डबल फ्लोट भी होता है,
So as you are all are familiar with integer and float, well, basically integer is normal number, कोई भी decimal आ गया तो float बन गया. There is one double float. Okay. So double float, actually what is the difference between these two, float and double float? So actually memory and range का difference होता है, nothing more. ठीक है. So memory का भी difference होता है कि how much size your float is consuming. So 2-bit and 4-bit back can be changed. ठीक है. So now what we will cover is, so what are the various data structures? What do you mean by data structure? Data structure. How many are BTech computer science? Ayumanyu, Rishabh. Okay. Computer science से कौन है background से? BTech computer science. No one. Okay. And so how many are BTech? I'm the one. I'm masters too. खाली BTech से बैठी हूँ ना, मैंने masters भी कर लेते. So this is my story. I'm tech, masters in it. So masters in computer science. So none of you are engineer. Sir, engineer but mechanical है. Okay. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर यार सारे ग्रुप में ऐसे दिन पे एमएस ही नहीं बनते हैं. Okay, mechanical. This should be a mechanical engineer. Yes sir. FOCP तो पढ़ा होगा वैसे यार. सर पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में सर, मतलब जस्ट टू क्लियर द सेमेस्टर. Okay, fundamental Same computer से programming. तो शुभांशु जी भी मैकेनिकल से ही है. ठीक है. मेरे को नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वाले थोड़े अच्छे लगते हैं, मतलब उनको मैं देता हूं थोड़ा अपने सब्जेक्ट डिस्कस पे. अभिमन्यु सर, वैसे व्हाट इज योर, आपने क्या मतलब यू आर ग्रेजुएट या किस चीज में आपका वो है एजुकेशन? BCA and MCA. BCA एंड एमसीए. सर आप तो कंप्यूटर वाले हो फिर. मतलब कैसे ना करके मतलब वही कान को इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बीटेक नहीं तो एमसीए हो. ठीक है. एंड दीक्षिता, व्हाट इज योर एजुकेशन? सर मेरा मैथमेटिक्स में मास्टर्स है. Mathematics and masters. Actually, we do have a girl in our DSU batch. She's a PhD in mathematics from Delhi University. Okay. Okay, मतलब बच्चों वैसा है. So okay, so मेरा अभिमन्यु क्या? I said मतलब So- मेरा PhD finance में, not mathematics. Okay, no issue. So much of the class favorite will be Abhimanyu sir. So most of computer science questions will go to him. So Gaurav sir, what is your and आपका like BTech and BCMC, what आपका क्या है? BTech and then MCA, because I also had plans to do PhD but then dropped it. Okay. So BTech computer science है क्या? हाँ जी. फिर शर्माते क्यों? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ. नहीं, मैंने बोला था. ओके. फिर रह गए कि बीटेक के नाम कब होगा. मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि यार आई एम आल्सो बीटेक. सो ठीक है, लाइक गौरव एंड अभिमन्यु विल बी द टॉप टू पर्सन जिनसे सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड हुआ तो देयर मास्टर्स टू. ठीक है. सो व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? डीएसए पढ़ा था सर? हाँ जी. मुझे तो बताइए. थर्ड या फोर्थ लीनियर नॉन लीनियर. ठीक है. वो सर्च था लीनियर सर्च बाइंड. ओके, लीनियर नॉन लीनियर. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर्स में Linear non-linear is also like in a data type structure. करेक्ट. सो ट्रीज ग्राफ्स याद आया? Yeah, linear Linear- array, stacked and all those things, and non-linear में tree graphs. सो के डेटा स्ट्रक्चर्स में जो अपन टाइम हो गया यूज किया वो तो निकल जाता है. लिंक लिस्ट आल्सो क्यूज स्टैक एंड ऑल. ठीक है. Yeah, So, fuse, yeah. yeah, tag and all those things comes under linear. And then yes. non-linear. तो जो हम यहाँ पे यूज करेंगे we will be using list. ठीक है. So next class में we will talk about list, dictionary. ठीक है. We will use a tuple करेंगे
and we'll talk about set. So set is the sets question will go to Dikshita, the union, intersection and all. तो दीक्षिता बताइए, ठीक है? List, dictionary, tuple, set, and we'll also talk about the string part. Okay. So these are data तो structures. फिर array भी आ जाएगा, I think data structure में. Array आएगा, but array पे इतने operation नहीं होते. Okay, now tell me one thing. This is the question to Gaurav. So Gaurav, sir, what is the difference between list and array? Array basically we can say like multiple values which start with a sequence of 0 and then and with whatever number we are storing. Suppose like if I'm storing the value starting from 0 to 1 to 10, then in array it will store from 0 to 9. वो लिस्ट ही है, लिस्ट में भी वैसे ही होता है. हाँ, तो array and list both perform similar way, I guess. Correct, but there is one difference. There is one difference. Array में we can store multi-level value, and in list we can store only single-level value. Is that the difference? Multi-dimension, okay, that नहीं, but list में multiple dimension होता है, मेरे को भी करवाना है. So multi-dimension list. अभिमन्यु sir, array and list में difference है. I think both are similar. Okay, I also think the same before studying. But बाद में देखा कि दोनों चीजें अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ी अलग है. So anyone of you, Dikshita, Supanshu, now open to all Rishabh. So okay, the main difference between list and array is list is heterogeneous. तो आप उसमें integer, float, string आप कुछ भी store कर सकते हो. So this is the example. A is equal to 1, 2. So this is a list. ठीक है. Happy. ठीक है. Okay. So आप कुछ भी store कर सकते हो. This is a list. Array is your homogeneous. उसमें आप एक ही चीज स्टोर कर सकते हो, एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो. दैट इज या तो आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे पूरे में, या फिर आप नंबर स्टोर करोगे, या फ्लोट, इंटीजर करोगे. करेक्ट. सो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस का यहाँ पे डिफरेंस आता है. होमोजेनस मतलब सारी जो डेटा टाइप है वो सारा जितनी वैल्यूज है दे विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप. इन एरे एंड लिस्ट में दे कैन बी डिफरेंट. एंड सिमिलरली फिर लिस्ट भी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू एरे. सो एरे नॉर्मली कंज्यूम्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज टू. So by default उसका जो variable है it consumes 2 bit of memory, and list consume more memory as compared to it. And list जो है takes more time for parsing as compared to array. Array are quite faster to operate upon, तो उसपे आप operation काफी fast कर सकते हो as compared to your list. ठीक है. So in the next class and list को आप denote करते हो इससे the square bracket, and the other one is tuple. So आप इसका tuple भी बना सकते हो. नोट करली हम डिक्शनरी में डालेंगे. ठीक है. तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज डिक्शनरी? सो ये चीज बताएगा शुभांशु जी, इफ यू हैव एन आइडिया. ओके चलो ऋषभ, आई थिंक शुभांशु इज हैविंग सम माइक इश्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर. ओके ऋषभ, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी सर? ऋषभ. हेलो. हाँ जी ऋषभ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी? नोट द इंग्लिश वन. सो डिक्शनरी क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर कुछ आइडिया है तो, या मतलब समथिंग यू डिक्शनरी थोड़ा बहुत सुना हो, कैसे क्या काम करता है, कुछ आइडिया है? सर बेसिकली कुछ चीज को जैसे कि वैल्यू व्हेन वी किसी चीज को असाइन करें कोई वैल्यू, सो वो एक तो ज्यादा नहीं है वैल्यू. Dikshita, do you know about dictionary? See, it is more in which we put values and key. Correct. सुभांशु जी ने अपना चैट में जवाब बता दिया. वो कह रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते, बट में हम बताएं. Yeah, same. It has a key and we assign some value in it.
So It's correct more for like dictation. mapping. Yes, you can continue. हाँ बस इतना ही. ठीक है. So ये डिक्शनरी होता है. This is the key, this is the value, and starting the curly braces. इसके हम सारे operations cover करेंगे in the coming class. ठीक है. Yeah. So this was much to give you familiarity. Coming class member will be dealing with the data structures. And okay, and one more thing, like be open. It is not that you know or not. This is more that the things are interactive, and we can get to know or feel कि ठीक है, where you have some, where you need to learn more इस चीज field में. And if you have something, of course, you can share with others. It is much of a, you can say, a group or together, much of a small family which we are working together to upgrade our skill set for the 3 to 4 month cycle. Okay. So this is much. Any question in today's session? किसी को कोई question हो तो you can ask me. No sir. Oh, Gurdeep. Okay. Gurdeep, I guess we didn't cover the open, open function for files. Reading the file. We covered the writing one and append one, but not the open one. Open one, So- पता है अभी नहीं करेंगे. जो string करेंगे ना data structure में string. So in that we will be using ये वाला. In that we will perform this open operation on read. So open read के साथ read में दो होते हैं, read lines and normal read. तो वो मैं वहाँ पे cover करूँगा. Yeah. ठीक है. So Okay. वो है, but अभी मेरे को लगा कि सिर्फ write and append करते हैं. कभी ज़्यादा confusion हो because वो पूरा उसमें चला जाता है. That's why वो वहाँ पे. So thank you for the reminder. I'll cover that part. Yeah. So any question anyone of do you have? ठीक है. No, So not now. thank you all. We are to the end of the session. So thank you Rishabh. Thank you Yumanyu. Thank you Dikshita. Thank you Gaurav. Thank you Thank you, Subhanshu. Gurdeep. Thank you Nikhash for being a silent listener. Thank you all. Have a थोड़ा हुआ बचा हुआ happy weekend. Enjoy this. So bye all. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you, Gurdeep. Bye bye.